येस सर. गो अहेड. बस क्रमांक XYZ या फ्लॅटवर लागली आहे. हाँ. ऐसा कुछ तो भी होता है सर. और उसका आवाज भी क्लियर नहीं आ रहा होता है. कुछ जगह पर मतलब ये वीडियो ये ऑडियो वगैरह क्लियर होता है, जैसे रेलवे स्टेशन टाइप होता है, पर वो भी क्लियर नहीं होता. अगर हम रेलवे स्टेशन पे देखते हैं तो क्लियर आता है और वहां पर इको भी नहीं होता है. क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या डिफरेंस है? No, one thing I can assure you कि your parents will be happy that you are learning. But still I am not seeing all the students. Pranjal, open your camera. So what is the difference? If you are given like 1 hour task and listen to these announcements, which one you will choose? Will you go to bus stand or will you go to railway station? Devansh? Railway station. Yeah, Pranjal. If you are given chance to go to either one of them and you have to listen those instructions or the announcement very carefully, so where you will go, bus stand or railway station? रेलवे स्टेशन सर. Why? सर Railway station. क्लियर जा होता है. इट्स नहीं, मोर क्लियर. क्लियर तो ये भी होता है, क्लियर तो ये भी होता है. और क्लियर होता है इसलिए तो वो लोग जो सुनते हैं ना तो वो फटाक से जाते हैं. हाँ, गाड़ी नंबर 4, 5, 6, 7 प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे लगी है. हाँ? ऐसे भी ना, टिपिकल आवाज होता है उनका. मैं भी मिमिक नहीं कर पा रहा हूँ. What is the Sir, difference between these two sound? Yeah. सर रेलवे स्टेशन पे सभी लैंग्वेजेस में रहता है सर. जैसे हिंदी, मराठी, इंग्लिश, मतलब किसी को भी समझने में प्रॉब्लम नहीं आता. नहीं, that is different. I am talking about sound. I am not talking about the language. रेलवे स्टेशन में एरिया बड़ा होता है ना, तो साउंड ऐसा क्लियर आता लॉन्ग रेंज साउंड रहता है. और दूर तक जाता है. और क्या है? चलो, अगर आपको एक चांस दिया जाए कि एक भाषण सुनना है किसी का और फिर एक FM रेडियो सुनना है, ठीक है, RJ, तो which one you will choose? RJ. RJ sir. Why? Why you will choose RJ? भाषण थोड़ा बोरिंग टाइप होता है और आरजे में थोड़ा फनी कुछ जोक वोक रहते हैं. नहीं, suppose both are saying the same thing. I'm not talking about the content. I'm talking about the quality of the voice, the audio. सर बोलने का तरीका. That is a content. You listen to the FM and you feel good or bad? Good sir. Good. ऐसा होता है कि FM सुनने का क्या क्या बोल रहा है ये. हाँ, ये आप बस स्टैंड पे कर सकते हैं. सर गुड. ठीक है, अच्छा लगता है. so the sound is sweet. Even you can't taste it, but sound is sweet when you listen to the FM, whereas the sound is harsh when you listen to the some announcements, right? Harsh sound. So what is the difference between these two sounds? Now we are coming to the physics, and I can assure you that 80% of any video, the success of 80% of any video is audio. इसीलिए मैंने अभी तक आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए नहीं बोला. जिन्होंने बनाया वो दैट इज ओके.
80%. So आप लोग वो मूवी देखते हैं तो इसलिए नहीं डरते कि वो सामने चेहरा बहुत भयानक दिखता है, इसलिए डरते हैं कि आप आवाज सुनते हैं उसकी. Sound effects. Yeah. So what is the difference between these two sounds? The harsh sound, okay, let me share this screen. Now, if you are just thinking about, say, sound at FM, so the sound will appear like this. I don't know if you know the name Amin Sayani. नाम सुना है? नहीं? Okay, you take any RJ. Any RJ? No, frequency is different. Frequency concept is different. Frequency concept is different and this is different. Yes? Any RJ? Abhilash Thapliyal. Okay. So let us take the example of Abhilash. So why you feel his sound is sweet? अच्छी क्वालिटी का माइक यूज करके होगे, ब्रांडेड. नहीं, माइक तो हम भी अच्छे क्वालिटी का यूज करते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 हजार का माइक ले रहे हैं. नहीं ले रहे? फिर क्या फर्क है? लेते हैं ना सर प्रोग्राम में. तो क्या फर्क है उसमें? दो माइक में एक कंडेंसर माइक होता है नॉर्मल वाला जो इट स्टार्ट्स विद से 30-40 रुपीज एंड मे बी अप टू 100 डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू बाय इट. And there is another mic like company Shearer or what is that? Boya. Then there are quite good companies. Ahuja. Ahuja is very old company. So that mic is something different. And this mic is something different. So what is the difference? And where comes this oscillation? In any oscillation, if the sound is sustaining for a long time, okay, that is what I have drawn here. So the sound is sustained for a long time, and if there is another sound where it ceases means it stops abruptly. That's it. Okay. So there will be a difference between these two sounds. One is reducing its amplitude very quickly, whereas the other is reducing its amplitude, or it is the amplitude is staying for a long time. So in case of RJ, उसका sound जो होता है वो sweet लगता है. Why? Because the sound stays for a longer time. Are you getting my point? अब आप उसको सुनो, ठीक है? Now I will just share. Somebody asked for the frequency, so I'll just share one video with you, and you have to watch the frequency number here, okay? And note down whether you can listen to all the frequencies. This is from 20 hertz to 20 kilohertz. Okay, we'll listen it again in ultrasound, but let us listen right now. Okay, can you see this video? Yes, sir. Yeah. Yes sir. Yeah. Yes, sir. Let me start, and just you have to note down from which frequency to which frequency you can listen to the sound. Okay, and then secondly, what you have to understand is
how the pitch of the sound is changing from say low frequency to high frequency. Ready? Yes. Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let us start now. Okay, now type the minimum and maximum frequency that you could hear. You can just type, or you can just tell me orally. There is no problem. Oh, सर 20 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज तक था, उसके बाद डाउन हो गया पूरा वॉल्यूम। ओके। और किसी का क्या एक्सपीरियंस है? सर 30 to 9,500. ओके, Sir, 30 to 10,000. गुड, ओके। मिनिमम 14। 30 to 9,000. तो अभी अभी विष्णु ने जो बोला ना, तो उसके पीछे से एक आवाज आई ट्रेन की, तो दैट इज अ हाई फ्रीक्वेंसी। ओके। और जो कार्टून में जब वो टॉम एंड जेरी जब दौड़ते हैं ना, तब जो म्यूजिक पीछे से आता है, so that is a low frequency sound, so that is always appears like what you can say comedy। ठीक है, आज मैंने ये लाया नहीं, पियानो नहीं लाया, तो मैं कल ले आऊंगा, and I will show you how it appears so beautiful। so this is whole different science। okay, so that is the difference between frequency and then the amplitude। okay, amplitude is different, the frequency is different। okay, mostly I can see that 30 to 10,000 or something like that। I think I am fortunate, I can hear up to 40,000 something। okay, about 15,000। तो जिन लोगों का ये हायर एंड जो है वो कम है, तो वो मेडिटेशन करो। you will expand your frequency। ठीक है, okay। now coming back to this slide।
So what is the difference between these two now? Oh, good, Sejal. She can go for 13,000. That is all available on YouTube. You can just listen again and again, and there is no problem. Okay. So what happens when this amplitude suddenly reduces to 0, and what happens when the amplitude keep on going on like this? So this is called as underdamped. Okay, and this is called as critically damped. And this is called as overdamped. So overdamp is something like बहुत बड़ा वेट है और ऊपर से नीचे गिर गया, तो उसका जो साउंड होता है वो साउंड भले ही लाउड हो, but it will not sustain for long time. Are you getting my point? Yes, no? Sir, can you please repeat? Sure. जो साउंड आ रहा है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता है, तो दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज ओवरडैम्प. और जो लॉन्ग टाइम के लिए आता है दैट इज अ अंडरडैम्प. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक में जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो जो पहला क्या कह सकते हो उसको, लेटर सॉन्ग में पहला लेटर जब उसका इंटेंसिटी कम होता है तो वो धीरे धीरे होता है किसी भी लेटर का. ठीक है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर. Yes, sir. जो हम अभी बात कर रहे हैं तो दिस अपीयर्स लाइक वेरी शार्प, हार्श, क्योंकि हमारा जो साउंड है वो दिस इज रिड्यूसिंग क्विकली. ठीक है? इवन इन माय केस, even if you take these mics, maybe like 1,000, 2,000, 3,000, but when you talk about the specific mics which are called as, in general it is called as echo mic. So you have small echo there. So that is not an echo actually, that is a reverberation. Reverberation मतलब धीरे धीरे वो साउंड की इंटेंसिटी कम होती है. ठीक? Are you getting it? No. एक मिनट, मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ. I will not show it. Let me try. Can you hear this? What I was trying to play? No? सर Okay. कुछ घुंघरू की आवाज आ रही थी. घुंघरू की? नहीं नहीं, वो तो माउस होगा. एक मिनट. Okay, let us start from here. You can see this video. Screen दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Now listen very carefully. वो जो स्ट्रिंग का आवाज है ना, वो कितनी देर तक, was it for short time or long time? फिर से एक बार. You can take any song.
Are you getting my point? So it remains for long time, and that is under dam, right? That is under dam. But if it is for very short time, then it is over dam. Got it? समझ में आ गया? अंडर डैम्प और Yes, sir. ओवर डैम्प, हाँ, क्या डिफरेंस है? सो अंडर डैम्प appears to our ears, it appears very smooth, it is very sweet, and that is the same thing what this RJ use. I mean, instead of RJ, the technical assistant, whoever is transmitting these signals. तो आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा बॉक्स होता है, उसमें बहुत सारे बटन होते हैं ऊपर नीचे करने के लिए, देखा है कभी? Yes, sir. Yes, sir. हमारे यहाँ BIT में भी है। हाँ, तो उसको ऑपरेट करने वाला जो होता है उसका भी एक स्पेसिफिक डिप्लोमा होता है। तो he knows whether the song should be, I mean, the music should be loud, or the voice of the singer should be loud or something like that. ठीक है? So that is how we change the quality of the sound. And in most of the cases, आप में से कोई कौन सा ऐप है? स्टार मेकर है ना? सॉन्ग्स आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपना विथ म्यूजिक। Yes, sir. Karaoke app. Yes, sir. यस सर। आप में से किसी ने ट्राई किया है? Yes, sir. उसमें आपको अलग अलग सेटिंग मिलते हैं। I don't know about Smule, Smule, I don't know, but in most of the apps you will get some kind of settings. तो रूम सेटिंग मिलता है आपको, तो रूम कौन सा होना चाहिए, ठीक है? दूसरा होता है कि रिवर्बरेशन कितना होना चाहिए, and so forth. So that is related, all of these are related with this under damp and over damp and critically damp. So normally it is suggested that you should keep the setting so that it should be a critically damp oscillation. बहुत ज्यादा अगर हो गया तो क्या होगा? पहले साउंड का जो इफेक्ट है वो खत्म ही नहीं होगा और दूसरा भी आ जाएगा, then it will be kind of echo something like that. तो आप उसको ट्राई करो अलग अलग। आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, इट्स रियली ब्यूटीफुल। हाँ, ओवरलैपिंग हो जाएगा, वेरी करेक्ट परीक्षित। बट व्हाई यू आर नॉट स्पीकिंग? So in this case, this is what in case of sound, it is under damp, critically damp, and over damp. How about your vehicle? Your vehicle has this what do you call, suspension. So अगर सस्पेंशन ओवर डैम्प है तो क्या होगा, क्रिटिकली डैम्प है तो क्या होगा, और अंडर डैम्प है तो क्या होगा? आप बताओ। Anyone? What will happen if? साउंड में चेंजेस रहेंगी। कैसे? आपके व्हीकल का जो व्हाट यू कॉल, सस्पेंशन को क्या बोलते हैं आप? शॉकअप, या शॉकअप में अगर इफ इट इज वेरी स्टिफ तो व्हाट विल हैपन? मान लो कि आपने आपकी गाड़ी का शॉकअप साइकिल को लगा दिया तो क्या होगा, या साइकिल का गाड़ी को लगा दिया। गो अहेड। अच्छे से काम नहीं करेगा। नहीं, दैट इज ऑब्वियस, वो अच्छे से काम नहीं करेगा, लेकिन क्या होगा? सर अगर साइकिल का गाड़ी को लगाए तो वो टूट ही जाएगा, अगर गाड़ी का साइकिल को लगाए तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, यानी वो शॉक एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगा, उसका ही वेट बहुत ज्यादा है। ओके, और
काम नहीं करेगा मतलब क्या होगा? दैट इज व्हाट आई, ओके, थोड़ा सा हम इसको ये कर लेते हैं कि ठीक है, मान लो कि गाड़ी का शॉकअप है जो जितना स्टीप है उसको थोड़ा सा हमने लूज कर दिया, तो क्या होगा? सर साउंड हैंग आ रही है। हाँ, ये काम क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। नहीं, आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। व्हाट आई वांट टू से इज लाइक फॉर एग्जांपल, आपके पास एक्टिवा है, एक्टिवा का हमने लगा दिया जुपिटर, जुपिटर का एक्टिवा का लगा रहे हैं। होगा क्या? दैट इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड, कि मान लो कि आपने, जैसे आप वो जंपिंग वाला देखा क्या आपने? स्प्रिंग होता है एक, यू कैन जंप ऑन इट, नहीं? Yes, sir. वो जंपिंग वो छोटे बच्चों के लिए होता है, और जब स्पीड काइंड ऑफ ट्रैम्पोलिन तो अलग हो गया, वो शीट हो गया। ये सिर्फ एक स्प्रिंग होता है और स्प्रिंग के ऊपर आप खड़े होके फिर ऐसे जंप कर सकते इधर उधर, ठीक है? अब वो बहुत ही स्टीफ होगा तो क्या होगा? हाँ, ही इज सेइंग पोगो स्टिक, आई डोंट नो। Yes. और जो स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जाएगा तब वो शॉक एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा पूरा, तो क्या इसलिए होगा? तो फिर मोशन बराबर नहीं होगा, वो झटके पड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, झटके पड़ेंगे। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन से हाई क्लास प्राइवेट बस, फॉर एग्जांपल दी कौन सी कंपनी है उसके लग्जरी शिवशाही। बसेस आते, कौन सी? वोल्वो, शिवशाही सर। मर्सिडीज। नहीं, मर्सिडीज और वोल्वो कहते हैं सर। हाँ वोल्वो, यस, वोल्वो इज वेरी पॉपुलर। मर्सिडीज के अभी आने लगे, बेंज जो है तो भारत बेंज नाम से आने लगे। इफ यू टॉक अबाउट दिस buses and then you talk about the Maharashtra ST, so that is the difference। तो आपको स्मूथ लगता है उसमें, इसमें स्मूथ नहीं लगता। so this is what the shock up is very important, ठीक है? तो यहाँ पे भी आपका ऑसोलेशन आएगा। do you have any idea that this oscillation is also important in computer? not in software, in hardware। लिख लो, लिख लो, सर्च करो। हाँ, यस, हार्ड डिस्क में सर। सर्च करो। नहीं, ऐसे हार्ड डिस्क में तो ये ऑसिलेशन नहीं आएंगे, इट विल बी अ रोटेशन, इट विल बी अ रोटेशन। आई एम टॉकिंग सर अबाउट क्वांटम ऑसिलेशन। कंप्यूटर्स में नहीं, वहां कहाँ होते हैं ऑसिलेशन? सर वहां पर पूरा जो बेस होता है वो न्यूक्लियर के बेस पे होता है ना सर, सॉरी एटम के बेस पर होता है ना, तो वो जो स्पिन होती है एटम्स की, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन होती है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होती है ना, तो वहां पर ऑसिलेशन होते हैं सर। बट दैट विल बी वेरी माइन्यूट। ऑफ कोर्स व्हेन यू टॉक अबाउट क्वांटम कंप्यूटर यू हैव टू कूल द एटम्स, दैट इज ट्रू। यस सर, so that's 0 why we डिग्री talk about, yeah, नहीं सेल्सियस नहीं, it is quite close to 0 डिग्री केल्विन। यस लिक्विड हेलियम, लिक्विड हेलियम हम यूज करते हैं 4 केल्विन तक। so yes, that is true, but I am not talking about that application। तो आप सर्च करो, ऐसे नहीं कि एकदम से झट से बता दिया। आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको पता ही होना चाहिए, यू कैन सर्च। प्रोसेसर। ओके, सर क्लॉक साइकिल। यस सर। सर्किट बोर्ड सर। नहीं, मुझे एग्जैक्ट चाहिए, ये नहीं कि आप गेस करोगे कि प्रोसेसर में होता है या इसमें। ऑफ कोर्स देयर विल बी मूविंग पार्ट में तो वो ऑसिलेशन होना ही है, ठीक है? सर क्लॉक स्पीड यूज्ड इन प्रोसेसर। क्लॉक स्पीड, but that is a kind of what you can say, instead of oscillation it will be, yeah, it will be oscillation, oscillator ही use करते हैं हम, but ठीक है, वहां पे भी यूज होगा, but it is not like under damp, over damp and all these things। now suppose you want to keep it constant,
like in कोलंबस. कोलंबस पता है आपको? कल शायद मैंने पिक्चर दिखाया था. कोलंबस पता है? The question is, questions are different. Who was Columbus and what is Columbus? ये अलग अलग है, ठीक है? So I am not talking about who was Columbus. I am talking about what is Columbus. Columbus is a big swing, electric swing. एंटरटेनमेंट पार्क जो होते हैं, अम्यूजमेंट पार्क, उसमें होता है. देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है? यस नो? Yes, sir. हाँ, तो when you talk about the Columbus swing, that is called as typically that is called as Columbus swing. ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ. Those who don't know, they will come to know quickly. Now, how do you consider the motion of this? So the amplitude of this may remain constant. Are you getting my point? नॉर्मल स्विंग जो होता है उसमें एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता है, ठीक है? नाउ यू आर गिविंग द फोर्स टू दैट ऑसिलेशन एंड दैट इज कॉल्ड एज फोर्स ऑसिलेशन. सो दैट इज द एग्जांपल कोलंबस. राइट साइड में आप देख सकते हैं, दिस कीप ऑन ऑसिलेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है? जब उसको स्टॉप करना है तो देन यू जस्ट स्टॉप द फोर्स. बट इज इट दैट समथिंग that you will give the force at any time? कभी भी आपने फोर्स दे दिया तो चलेगा क्या? No, sir. नहीं. So it should be given when it is going towards the extreme position. तभी आप उसको आगे खींच सकते, ठीक है? मान लो कि वो पीछे नीचे आ रहा है और आपने फोर्स लगा दिया ऊपर की तरफ, राइट? तो क्या होगा? Then the motion will decrease, right? So this force, वो झटका पड़ेगा. So the force that you are applying is a time dependent force, and therefore when you talk about force vibration, forced ED vibration, in that case the natural vibrations could be something like this. But when you are giving the force, then these vibrations will remain constant in time. So ये amplitude constant रहता है. That is the example of your CPU. क्या कहते हैं उसे? ऑसिलेटर. आप लोग क्या कहते हैं उसे? प्रोसेसर. प्रोसेसर क्लॉक. So how does it gives the exact time? Because we are using the oscillator in it, and then the timing for the oscillation and the amplitude for the oscillation remains constant for long time. जैसे क्लॉक है, पेंडुलम क्लॉक. पेंडुलम क्लॉक में वो पेंडुलम घूमता रहता है continuously. Why? Because we are giving the force. We are giving the force at regular interval. It is not something like you are giving it at all places. No, at regular interval, so that it keeps on oscillating. ठीक है? Okay. Any doubt? Any question? नहीं? What is the chat? Okay. So I think that is enough for this oscillation, and you can just go through the equations of these three types of oscillations, like underdamp, overdamp, and critical damp. But if you are talking about the force oscillation, then in that case, what you can say that if the external frequency is same with the natural frequency of the material. What is natural frequency? Have you ever seen what is natural frequency? कभी देखा आपने? Natural frequency देखा आपने? It may be the frequency of oscillation, it may be the frequency of rotation, it may be anything. नहीं. आप लोगों ने YouTube पे ऐसे वीडियो देखे हैं क्या? कि हाँ, 12th में सुना था. ओके. YouTube पे कई ऐसे वीडियो देखे कि
बजाते बजाते उसने कांच का ग्लास तोड़ दिया, देखा है? यू कैन जस्ट सर्च आउट। यस सर। Yes, सर sir. Yes, sir. वॉइस, देखा है सर। माउथ की वॉइस से सुना है। 3-4 लोगों ने एक ही टाइम पे बोला तो मुझे समझ में नहीं आया। कैन यू रिपीट? सर और इससे इंस्ट्रूमेंट से नहीं सुना, पर ओपेरा सिंगर्स जो रहते हैं ना, उस टाइप का सुना है कि उसने अपनी वॉइस से तोड़ा था वाइन ग्लास। बिल्कुल बिल्कुल। So that wine glass also has a particular frequency, natural frequency. Now when the external frequency matches with it, then it will be a resonance. Now what is a resonance? What is a resonance? When two slightly different frequencies are come together, then the resonance will be formed. Not slightly different. Slightly different है तो beat होगा, waxing and waning. If they are exactly same, yes, force frequency is exactly same with the natural frequency. तो आप देखो कि कोई भी गाना, you take English, Hindi, Marathi, Gujarati, any language, doesn't matter. जब वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक दूसरे के साथ ट्यून होते, दे आर वर्किंग एट द सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है? वो जो बोलते हैं ना कि गाना शुरू करने, गाने के प्रोग्राम देखते हैं आप लोग? यस सर। तो वो शुरू करने से पहले बोलते हैं कि वो ब्लैक 2 देना, ब्लू 3 देना, जो भी है। ब्लू 3 नहीं होता, आई एम जस्ट जोकिंग। ए माइनर, बी माइनर। हाँ, ए माइनर, बी माइनर। या गिटार जब आप सीखते हैं तो सी शार्प या सी या सी शार्प से शुरू होता है, मतलब टीचिंग जो मैंने सीखा था बस उतना ही सीखा था, सी शार्प क्या होता है। ठीक है? सो दैट इज व्हाट it is actually the frequency of the guitar and the say tabla and other instruments, they are matching with each other. अगर वो मैच नहीं होते हैं तो फिर आपको गाना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, ये हो सकता है कि that will be double or half or something like it, multiple, ये हो सकता है, लेकिन it should match, तब रेजोनेंस होगा। नहीं तो फिर वो आपको मजा नहीं आएगा कि ये तबला वाला कुछ अलग ही बजा रहा है, ये गिटार अलग ही बजा रहा है। जैसे हम अगर प्रोग्राम शुरू करें तो then it happens. ठीक है? Are you getting my point? So that is a resonance. Suppose एक आर्मी की टुकड़ी है and then these 30 guys are supposed to cross a bridge. So they are supposed to disperse and then cross the bridge. Why? ये आपने सीखा होगा इसमें। रेजोनेंस। या इट इज अ रेजोनेंस। मार्चिंग करेंगे तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ब्रिज के फ्रीक्वेंसी से मैच हो सकती है, ब्रिज टूट जाएगा। राइट। तो ब्रिज टूट सकता है। तो आप मतलब इवन इन केस ऑफ दिस स्टॉर्म, so the bridge may break because of this resonance frequency. It's so important. It's so important. ठीक है? Now when the resonance occurs, when it is occurring, then what happens? क्या होता है? Suppose this is frequency and this is the intensity, and this is suppose natural frequency, say nu 0. You can just talk about n0 or nu 0, whatever it means. Now when the external frequency is quite away from this natural frequency, then the intensity is very less, and slowly the intensity start increasing. Okay? And suppose this is the like this. Okay? So the peak of this intensity will be very high. Ideally it will be almost infinity, but practically it is not possible. Infinity कैसे होगा? So there is some limit. Okay? So we'll have some peak here, and then if you increase the frequency, यहाँ से हम increase करते जा रहे हैं तो धीरे धीरे intensity बढ़ते जा रही है. Now if the external frequency, say nu e is same as that of nu 0, then the resonance will occur. And if nu e is external frequency is more, then again the natural frequency, the intensity
of the sound or whatever it may be, the vibration start decreasing. ठीक है, ये आ गया ध्यान में. Now this is undamped oscillation, undamped. Now how about damping? So suppose there is critical damping, then critical or under damp. तो under damp के लिए ये ऐसे आएगा, ठीक है. क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए कुछ ऐसे आएगा, और ओवर डैम्प के लिए ये देखो पीक इधर इधर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है. पीक इज शिफ्टिंग, थोड़ा सा इधर इधर आएगा पीक. So peak also shifts towards the higher frequency. So as the damping increases, damping increase हो रहा है, ये हो गया आपका अंडर डैम्प, ये हो गया आपका critical, and then this is over damp. So as the damping increases, the intensity of the resonance decreases. Resonance पे जो भी ये इंटेंसिटी आपको मिल रही थी वो कम होती है आपकी. Have you seen this? कभी देखा है ये डैम्प ऑसिलेशन में कैसे फ्रीक्वेंसी कम, सॉरी इंटेंसिटी कम होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट. नहीं, कभी नहीं देखा. सरप्राइजिंग. आप लोग म्यूजिकल कॉन्सर्ट देखते हैं कि नहीं? मान लो कि आपने एक सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट आपने देखा है, 12th में था, लेकिन 12th में आपको जाने का मौका ही नहीं मिला. हाँ, रेजोनेंस ट्यूब. और रेजोनेंस ट्यूब इज फॉर द एयर कॉलम, दिस इज फॉर स्ट्रिंग. आप सिंपल सा एक स्ट्रिंग ले लो, ठीक है. ये कपड़े सुखाने की जो डोरी होती है ना, उस टाइट बांध दिया, ठीक है, और फिर उसको आपने वाइब्रेट कर दिया, ठीक है. दैट इज द सोनोमीटर, दैट्स इट. वो इससे ज्यादा थोड़ा सा हाई एडवांस लेवल का इंस्ट्रूमेंट है, बट अदरवाइज दिस इज द सेम, ठीक है. ये ध्यान में आ गया. आपने उस डोरी को प्लग कर दिया तो वो वाइब्रेट होगी ऐसे, ठीक है. अब उस पर डैम्पिंग डालना है. डैम्पिंग डालना है मतलब उस पर कुछ वेट डाल दो आप, कोई एक कपड़ा सुखाने के लिए डाल दिया, एंड देन नाउ यू प्लग इट. तो क्या होगा? रेजोनेंस भी होगा, तब भी वो ऑसिलेशन जो होंगे वो इतने फ्रीक्वेंसी से नहीं होंगे, फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी उसकी कम हो जाएगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, नो? यस सर. नहीं. यस सर. उसको कपड़ा अगर ऐसे बांध दिया सपोज एक साइड से, एंड देन यू स्टार्ट ऑसिलेटिंग, तो वो वेट ज्यादा हो गया ना, तो उसका जो इंटेंसिटी होगा वो जितने क्या बोल सकते हो उसको, लेंथ से, जितने डिस्टेंस से वो ऐसे ऑसिलेट हो रहा था, अब वो थोड़ा धीरे धीरे हो जाएगा. तो दैट इज व्हाट द डैम्पिंग अफेक्ट्स. तो जहां पे आपको रेजोनेंस चाहिए तो वहां पे आप उसको डैम्पिंग को कम करो. लेकिन अगर डैम्पिंग अगर है और रेजोनेंस भी हो रहा है, तो ओवर डैम्प अगर ऑसिलेशन है तो रेजोनेंस कम होगा. एंड दैट इज द सेम प्रिंसिपल दैट इज यूज्ड इन व्हीकल्स, चॉक ऑफ द व्हीकल्स. तो आपको डैम्पिंग आप बढ़ाओ तो वो रेजोनेंस भी हो जाए, तब भी इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, और अगर डैम्पिंग नहीं है तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा. क्लियर? क्लियर? यस, नो? सीखने में मजा आया कि नहीं आया? गिटार है किसी के पास? गिटार है कि नहीं है? यस सर. है अभी? हाँ. तो थोड़ा सा हमें वो स्ट्रिंग जरा, क्या कहते हैं उसे, एक स्ट्रोक, हाँ एक सर. स्ट्रोक सुना. फिजिक्स सर हर क्लास जगह भी है. पढ़ेंगे अपनी. अरे बाप रे, ठीक है, फिर कल के क्लास में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. यस सर, अयान के पास भी है सर, उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है गिटार का.
अच्छा, कहाँ है यार? सिंग अच्छा बजाता है वो। लेकिन है कहाँ वो? है क्या? ये देखो, कैमरे का माइक खराब है उसका। कैमरा भी खराब है, माइक भी खराब है, स्पीकर चल रहा है कि नहीं पता नहीं। ठीक है, तो यू कैन ट्राई रक्षा ऑन नेक्स्ट। व्हाट आई विल सजेस्ट यू, यू शो अस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जो आप उसका क्या कहते हैं, स्टॉपर कहते हैं कि उसे? यस सर, 6 स्ट्रिंग रहते उसमें, मतलब ई स्ट्रिंग वगैरह रहती है, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मतलब सभी स्ट्रिंग के लिए चेंज होती रहती। राइट। और फिर आप जहाँ पे उंगलियां रखते हैं तो वहां पे भी वो, इवन यू हैव द सेम स्ट्रिंग, जब आप दूर दूर जाते हैं तो उसका आवाज अलग अलग आता है। यस सर। हाँ, तो वो भी आप हमें सुनाइए, मे बी ऑन मंडे। यस सर, चलेगा। हाँ चलेगा, ठीक है, तो मजा आएगा उसमें। फ्रेड्स, ओके, I don't know technical names, but whenever I listen to music, I always think about the physics behind it. So you should think about the logic. As a computer engineer, you should always think about the logic. Okay? ठीक है. So that's it from my side. Let's take a break here. We'll continue in next